hello. Good morning. ऑल इंडिया रेडियो का Let's hear the अमृतसर song first. स्टेशन। गाना आज सुनते हैं। फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज थे। Good morning. Good morning, Kirti ji. How are you, Dr. Kirti? You have to remember that. You're a doctor and you're very good. I wish I did all my dental work in India. But anyhow, and Good morning. good morning. It's so nice to see you. I know you have a busy schedule. आपने बताया मुझे, but I really appreciate that you could make it to us and come to our program. I'm really happy to see that. Let me see if this is coming here or not. I'm going to try to share it. It's coming on my page at the moment. So chalo, let's go. Dil Diya Galla should be coming. It should be here. Okay. I'm going to make sure that it's coming ताकि मैं share करूं सबके साथ and then we can. Okay. Yeah, here we are. So we are okay. Yeah, here we are right here. तो मैं कहती हूँ कि भाई thank you so much for coming. Like I said, आप काफी दिन के बाद आए हो, but you're busy and the summer was very busy, and you come up with a very very good topic, the timely topic, meaning कि ladies को देखो maintenance करने में क्या क्या नहीं करना पड़ता, right? So many things Yes. and we touched a lot of Yes. subjects already. Skin का भी किया है, हमने lips की भी बात करी थी last time. So a lot of things we touched, and also I really admire you that you can do so much, being a dentist and also doing this face, this cosmetology also. Two things at the same time, not easy. And then you said कि आपके जो clients आते हैं सारी दुनिया world से आते हैं, and they make an appointment with you. So Yes. I'm gonna suggest that all of you who go into India, please do go to her studio and get your things done, whatever you have to do. You should do that. That'll be great. So Kirti ji can really take very good care of you, and and also they couldn't get your things, go for 2 weeks or whatever and get your face, whatever you have to do when you come back, wherever you're going from, you look beautiful, तो ऐसे करना चाहिए. But anyway, आप बताएं, आप how's everything with you going on? Thank you so much for inviting Veena ji. On And I always said, जैसे आपने बोला, and I always said कि कभी भी respect and work you get, you should always take it with open arms, because God does not bless everyone with work and respect, both things together. And I'm blessed कि I'm gratitude to God and people like you who have given us platform and chance always to be on platform. Thank you so much from Dil se, Dil Diya Galla from Dil se. No, I'm so glad that you could, you can come, because I know that कभी कभी होता है कि बहुत busy होते हैं, and like everybody has so much going on here as well as in India. Things are not easy anymore. Everybody's so busy taking care of families, taking care of work, and Yes. हो गया you India, and I saw that people are so busy over there too. That you're just like over here. So life is not has changed,
at all. And आप सारे beauty pageant में भी करते हो. You are the judge or you participated, right? I had participated also. I saw your picture. And so beautiful. हाँ, Yeah. I had participated also, but I participated because I was already doing उस time I was doing all these fashion shows at very not very small scale, but okay with in between friends and all. So I always wanted कि while organizing even I should have one crown ना. Why not? तो उसके वजह से ही मैंने उसको सोचा कि even I should have one crown with me. तो बिकॉज मुझे लगता है क्वीन तो सभी बनना चाहते हैं. ठीक है ना. और लाइक यू सेड कि लेडीज को बहुत कुछ करना पड़ता है, बट आजकल मेल्स भी बहुत अवेयर है. बट हाँ, पापा की परियां तो सिर्फ फीमेल्स ही बन सकती है ना. तो दे हैव टू ऑल दैट मेकअप, लुक गुड एंड ऑल दोस थिंग्स. दैट इज ट्रू. एंड आल्सो के लेडीज को तो दे हैव टू कीप अप विद एवरीथिंग, न्यू थिंग्स कमिंग अप. यस, That's the thing. Yes. A lot of things coming up. आजकल नई नई चीजें निकली हैं जो हमको पता भी नहीं. Last time आपने कुछ बात करी थी, ग्लूकाथॉन, I think it was. हाँ जी, ग्लूटाथान and NAD. Yeah. आज we will speak about peels. Peels. Chemical peels. Today Yes. we are speaking about that. That time we spoke about those things, and it was really very, very interesting to see that. Very. And to hear about those things, because I've heard of it. But ये नहीं मालूम था कि कैसे करना है, क्या करना है. तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था last time. If you haven't seen it, please go back and see that video. It was posted about a month or 2 months ago. You can see it in our Dil Diyan Gallan platform. See it there. So आप इसके बारे में बताएं कि chemical peels किसको यूज करनी चाहिए या कब करनी चाहिए, so that we have. देखिए, chemical peels basically, as the name suggests, पहले earlier they were only based on chemicals. अभी तो we have totally organic peels also. Okay. What is peel? I will just tell in basic language. Basically क्या होता है, हमारी स्किन की जस्ट अपर एपिडर्मिस को ना बिल्कुल हम उसको हल्का सा स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से मतलब टच करते हैं, जिससे कि वो एक पील उतर के आता है. इसलिए उसका नाम पीलिंग है, क्योंकि स्किन पील ऑफ होती है. लेकिन विद एडवांसमेंट स्लोली अर्लियर जो पहले केमिकल पील्स होती थी, आई स्टिल रिमेम्बर when I was young, I heard उस वक्त I was studying कि उर्वशी ढोलकिया is undergoing some treatment to lighten her body. I heard of and that. For that, yes, and for that she has to मतलब 15-20 दिन के लिए she cannot come back, मतलब बाहर नहीं आ सकती and all those things. तो there were many things. और पहले ऐसा लगता है, अभी भी लोग सोचते हैं कि केमिकल पील सिर्फ फेस पे ही करते हैं, बट वी डू पील्स ऑल ओवर बॉडी. मेरे पास जैसे प्री ब्राइडल बुकिंग्स होती हैं, और स्पेशली जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको स्कैल्प कभी डैंड्रफ रही हो या ऑयली रहती है स्किन, बैक पे बहुत स्कार्स होते हैं, या बचपन में बच्चे ध्यान नहीं देते, दे स्क्रैच देयर बैक. तो पील्स इज एज मतलब हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं उनसे, हम स्कार्स रिमूवल ऐसे भी हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशंस अलग हैं. जो नॉर्मल हम लोग डे टू डे पील्स हैं, बट स्टिल आई सजेस्ट कि भी जैसे मिनिमलिस्ट है, एटमी है, इनके बहुत बेसिक पील्स आए हैं जो आप होम केयर के लिए यूज करते हैं. बट फिर भी मुझे लगता है कि पील्स यू शुड ऑलवेज डू इट अंडर डॉक्टर सुपरविजन, क्योंकि एज गुड एज सॉल्ट है. पढ़ी है, कुछ नहीं कह रही, अगर जरा सा रिएक्शन अगर होगा तो यू हैव टू गो विजिट टू अ डॉक्टर. अगर किसी को भी किसी भी जैसे हमारे पास कोई आता है तो हम उसको पैच टेस्ट करते हैं ऑन आर्म, थोड़ा सा लगा के देखते हैं कि he or she is not reactive right to that particular substance. और पील्स भी डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू स्किन होती है, अकॉर्डिंग टू जिसके ब्लेमिशेस है उनको अलग से पील है, जिनको सिर्फ छोटे छोटे से फैकल्स हैं उनको पील है. बेसिक पील के 3 to 4 वर्क्स होते हैं. सबसे पहले तो ये एंटी रिंकल भी होती है. बहुत माइनर जो छोटे छोटे से जो हमारे बहुत स्मॉल रिंकल्स, बहुत फाइन लाइंस होती है, उसको रिड्यूस करती है, टोन करती है हमारी उसको क्या कहते हैं फेशियल स्किन को. स्कार्स भी, क्योंकि हम अपर एपिडर्मिस ऐसे जैसे ये होता है ना, ऐसे बिल्कुल एक छोटी सी लेयर उतरती है. अब हम लोग बहुत सारे पील्स हैं, जैसे बॉलीवुड पील, सेलिब्रिटी पील, ग्लूटाथाइन पील, दे डोंट पील ऑफ एट ऑल. उनका कोई डाउन टाइम नहीं होता.
Oh, आप आज मेरे पास आए, हाफ एन आवर का प्रोसीजर है, आपने किया, यू आर गुड टू गो एनीवेयर, जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन। okay. That's yeah, yeah. Sunscreen is good. हाँ, बट लेकिन जिनको ब्लेमिशेस हैं, जिनको एक्ने स्कार्स हैं, और या जिनको एक्ने इश्यूज हैं, उन Uh-huh. इन सब की डेडिकेटेड पील्स अलग अलग होती हैं। एक्ने की भी अगर बहुत नॉर्मल से एक्ने है, और हाँ, किसी को पस वाले एक्ने हैं, सब अलग अलग तरह की पील्स हम लोग यूज करते हैं, और उसमें स्किन का डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपको प्रॉब्लम है, हम उसका डाउन टाइम होता है। जैसे नॉर्मल पील है 3 to 4 डेज में होगा, अच्छा, अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े मेलाज्मा के पैचेस हैं तो 5 to 6 डेज रहेगा, और अगर बहुत बैक पे कराया है जिसपे बहुत ज्यादा पूरी बैक की बैक स्किन निकल के आती है, हाँ, और हैंड्स एंड फीट पे भी बहुत, इवन मैं खुद भी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टैनिंग होती है तो मैं कराती हूँ बॉडी पील। अच्छा, उसमें क्या होता है, स्किन लाइट हो जाती है पील निकाल के, बिकॉज ऊपर हाँ, क्योंकि अपर लेयर। ऊपर का फर्स्ट लेयर जो होती है ना, देखो, एंजाइम पील, ग्लास ग्लो पील्स, ग्लूटाथाइन, बॉलीवुड सेलिब्रिटी पार्टी पील, इनमें बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं होती स्किन। ओह, अगर एक्ने हैं, स्कार्स हैं, उनमें क्योंकि वो मेडिकेटेड है, डिपेंडिंग अपॉन तो हम कितनी कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हैं, उसमें हल्की सी बहुत माइनर सा पील ऑफ हमको कुछ माइनर कुछ बड़ा, उस हिसाब से जिस डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स आते हैं। बाकी बॉडी के जैसे हैंड एंड फीट का टैन हट जाता है, हाँ, पील्स एंड डी टैन एंड ब्लीच, दे विल नेवर गो टुगेदर। ओह, अगर आप पील कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी पे 15 डेज तक ब्लीच या डी टैन नहीं कर सकते, बिकॉज योर स्किन हैज बीन एक्सपोज टू अ केमिकल। स्किन पे बर्निंग हो सकती है, थोड़ा इच्ची हो सकता है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि हमेशा हमेशा आप उसको अंडर डॉक्टर गाइडेंस ही लो। हाँ, अच्छा, 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 वाई, हम हम वाई, लोग पील्स बहुत बार हम हाइड्रा फेशियल या फोटो फेशियल के साथ कॉम्बाइन भी करते हैं, थेरेपीज करते हैं, तो उनके साथ हम लोग कॉम्बिनेशन में भी करते हैं। अच्छा, तो अभी तो फिर हाँ जी, मेरा मतलब ये है कि that means when you get that done, your skin, तो ऊपर लेयर का आप कह रहे हैं ना, ऊपर लेयर पील हो जाता है, that's what it calls chemical peel. हाँ, वो मेडिकेटेड पील्स में होता है। अगर नॉर्मल जैसे बॉलीवुड पील है, उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, बॉलीवुड पार्टी सेलिब्रिटी पील, दे विल नॉट पील ऑफ एट ऑल। ग्लूटाथाइन पील भी बिल्कुल भी उसमें अंडर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस में अगर हम कर रहे हैं, बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं होती, गुड टू गो। आप आज आए हो, आप शाम को ही किसी पार्टी में जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे अलग, जैसे हम लोग बाकी पील्स करते हैं, जेसनर्स पील, येलो पील, मेलाज्मा पील, सेलिसिलिक पील, तो उसमें थोड़ी बहुत हमारी वो होती है। और जैसे ट्रीटमेंट बेसिस पे हम लोग जाते हैं तो कई बार तो पूरी पूरी स्किन की ऐसे परत ही उतर के आती है बॉडी पील से। तो ये बॉडी वाली हाँ, तो उसमें बॉडी वाली पील कौन कराते हैं? Who are the one getting it सब done? कराते हैं, सब लोग कराते हैं जिनका रोज का काम है। जैसे बॉडी डिटेन होती है, वैसे ही बॉडी की पील होती है। Hmm, आ- interesting to know. Yeah. हाँ, और आप मतलब पील्स बहुत इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, बट इट हैज टू अंडरगो अ सुपरविजन। जैसे जो होम बेस्ड पील्स आती हैं, अगर आप उसको एवरी 15 डेज करोगे तो ये स्किन विल ज्यादा पतली हो जाएगी। एक नॉर्मल अनटिल एंड अनलेस किसी का बहुत प्री ब्राइडल है या कुछ ऐसा है, तो हम 15 to 20 डेज में करते हैं, अदरवाइज 21 डेज बिफोर हम लोग किसी का भी पील नहीं करते, Okay. शादी के ना पहले, ही। before हाँ, getting married. मतलब कुछ हमने पैकेज ऐसा लिया हुआ है कि हम उसको 15 डेज के पैकेज में लेजर, और अगर हम कर रहे हैं तो कर सकते हैं पील के साथ। ना तो लेजर हो सकती है 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर, ना ही हम कोई और ट्रीटमेंट हाइफू एंड ऑल कर सकते हैं। यू Oh, हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्किन हैज, आप उसकी फर्स्ट लेयर को एक हल्का सा आपने उसको अपग्रेड किया है, तो कुछ भी हीट या कोई भी और केमिकल उसको हार्म कर सकता है। that's तो another thing. आपको हमेशा 21 डेज का गैप, अगर आप होम केयर वाली पील्स भी यूज कर रहे हैं, Hmm. इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप 21 डेज का गैप उसमें रखें। तो आप घर में भी कर सकते हो ये खुद भी? I mean, let's say, हाँ, बहुत सारे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ने लॉन्च किए हैं, बट दे डोंट हैव द इफेक्ट, दे आर एज गुड एज कि आप अगर आपको दांतों में ठंडा गर्म है तो आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप नॉर्मल कोई भी कोलगेट क्लोजअप कर रहे हो,
बट सेटिस्फैक्टरली बहुत सारे लोग, जैसे घर में भी बहुत सारे लोग डी टैन और ब्लीच करते ही हैं, उस हिसाब से दे आर मिनिमलिस्ट। और एक दो हैं ब्रांड्स जिन्होंने ऑर्डिनरी बेसिक पील्स उन्होंने लॉन्च की हैं, हम्म। पर उनके इफेक्ट्स बहुत टेम्परेरी होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इंडिया में these things are very more advanced, I think. यहाँ लोग लेडीज यहाँ यूज करते हैं, यहाँ से I don't hear too much about. I mean, I've heard about chemical peels, of course, but ये नहीं मुझे मालूम कितने लोग करते हैं. पर इंडिया में these things are very इंडिया में, पाकिस्तान का, this countries, एशिया में, they're more into so much into this kind of things. तो पता है, I would like ब्यूटीफुल है ना, यहाँ की लेडी ज्यादा ब्यूटीफुल है। beautiful है, उनके पास टाइम होता है, फेशियल भी कराना है, फिर ये भी कराना है, वो भी कराना है. ऐसा नहीं होता, गुड थिंग्स टेक टाइम, टेक्स टाइम, या. बट ये ना देखो, देखो वेदर का भी बड़ा इफेक्ट होता है. वेदर देखो ना, इंडिया का वेदर हॉट एंड डस्टी, मे बी दे हैव टू डू मेंटेनेंस करनी पड़ती है. यस, एंड प्लस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन. अब बाहर, अब मतलब हाँ, होम केयर पील्स के लिए कोई भी डॉक्टर इससे भी मना करते हैं, क्योंकि हम पील लगाते हैं तो उसके बाद हम पील लगाने से पहले स्किन पे प्री पील लगाते हैं, स्किन का पीएच मेंटेन करते हैं, और हम आफ्टर पील पैक्स लगाते हैं टू हाइड्रेट द स्किन। लेकिन हम नॉर्मली होम केयर में सब लोग इतनी ज्यादा कहाँ करते हैं, कोई भी पैक लगा लेते हैं, कोई भी पील लगा लेते हैं। लाइक इफ आई एम डूइंग अ पेशेंट, जैसे आज मेरे पास पेशेंट था, उसका सैलिसिलिक पील का था, तो मतलब उसको पिंपल्स प्रोन थी, तो उसका अलग पैक है। आई कांट गिव द सेम पैक टू यू एंड मी, सबके लिए अलग कस्टमाइज्ड रहेगा। पिंपल का क्या होगा? पिंपल में उसके हैं तो ये करने से तो पिंपल विल सबसाइड और कम हो जाएंगे, क्या होगा? नहीं, कम हो जाएंगे। देखो, व्हेन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट, पहली ट्रीटमेंट के बाद तो हम स्किन को सिर्फ प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट से हम उनको कभी कभी हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है पेशेंट को, कि वो एक बार खाएं और अंदर से जितना भी आउटस्पर होता है ना अंदर से, फर्स्ट सेशन के बाद वो बाहर आ जाता है। अच्छा. फिर वो धीरे धीरे सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और फिर फोर्थ या फिफ्थ सिटिंग में दे आर ऑलमोस्ट 80 to 90% क्योर्ड एंड गॉन। ओके, so that's the होम thing. केयर प्रोडक्ट भी देते हैं कि घर में लगाने के लिए, कि रात को सिरम्स देते हैं, कुछ जेल्स देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी किसी की सिवियरिटी है। मेलाज्मा के लिए अलग ट्रीटमेंट है, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। So each one has it, just depending on the skin की जो कंडीशन है या जो उनकी जरूरत है, that's a different pack, different thing. And how long does it take करने में? 30 minutes। तो करना क्या पड़ता है? आप उसको लगाते, फेस पे लगाते हो या कोई मशीन होती है? कैसे करते हैं? नहीं, फेस पे लगाते हैं नॉर्मली, जैसे हम क्लींस करते हैं, फेस को क्लींस करते हैं, फिर हम उसको एक हल्का सा मसाज देते हैं टू हाइड्रेट, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन, जेल से या क्रीम से। देन प्री पील लगाते हैं उसको क्लीन करके, 3 to 4 मिनट्स प्री पील रख के उसको क्लीन करते हैं। फिर हम लोग ब्लॉकेजेस करते हैं, लाइक आईज, लिप्स, नोज के साइड्स पे, कि कुछ पेशेंट को कई बार स्मेल से ही प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से। और फिर उसके बाद उसको पील को अप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी कॉन्सेंट्रेशन और कौन सी है। 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 8 मिनट्स हम लोगों को रखना पड़ता है उनको. तो अच्छा, इस वजह so it takes उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं पील को, एंड देन वी अप्लाई अ पैक। कभी कुछ पील्स में एक ही के साथ एक ही पैक है, कुछ के साथ 2 पैक्स हैं, इस तरीके से। So this has nothing to do with इसका स्किन, इसको करके जैसे स्किन गेट लाइट के Yes. नहीं, ग्लूटाथाइन पील है जिससे स्किन ब्राइट लगती है, योर स्किन विल ग्लो, रिंकल्स नहीं आते, टोनिंग रहती है, कोलेजन बूस्ट करते हैं, स्किन की इवननेस में कंट्रोल करते हैं, फाइन लाइंस रिमूव करते हैं, बहुत माइल्ड से स्पॉट्स होते हैं, दे आल्सो गेट लाइटन्स विद। ये नॉर्मली एडवांटेजेस है। सिर्फ डिसएडवांटेजेस एक है, अगर इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली, पैच टेस्ट नहीं किया तो एलर्जिक है तो प्रॉब्लम है, या फिर आप उसको बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं। जैसे ब्राइडल पैकेज में भी अगर हम दे रहे हैं, तो अगर हम उसको जल्दी दे रहे हैं तो दे विल नॉट बी बोथ द ट्रीटमेंट। एक हम लोग बहुत लाइट पील जो हमें सिर्फ ग्लो के लिए, ग्लूटाथाइन के लिए देनी है, जस्ट टू इवन द स्किन, और साथ में उनके तो 15 डेज का गैप देके हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्श की केमिकल्स वाला, हम उसमें ऑर्गेनिक पील्स भी हैं हमारे पास, विद टोटली बनाना, टोटली पपाया एंजाइम्स के साथ।
Okay, that sounds really good. But ये इसका कोई harmful effect तो नहीं ना? कोई नहीं, no, not at all. no harm effect. तो अभी कभी जैसे आपको, तो आपके डिफरेंट दिन में आप कितने करते हो, कितने पेशेंट्स आते हैं आपके पास इस चीज के लिए? Oh, what happened? So something happened with the phone or something, so she's not there right now, but she'll be back. कीर्ति जी क्या हो गया? But I don't know if anybody's interested here, but मैं तो कभी इस चीज के लिए, हाँ आप तो यहाँ पर हो लेकिन इधर चले गए हो. Yeah, right now I have to tell her to join again because there's a new system, plus she's has to come back because I don't know much about these things myself, but it sounds very interesting to me. Okay, there you are, show on stream. Here it is. हाँ जी, क्या हो गया? Sorry, there was some technical glitch. The Wi-Fi got some electricity problem. Oh, okay. अच्छा, अब आपकी तरफ से, okay, okay. Yes. यहाँ से नहीं, यहाँ से तो ठीक चल रहा है सब कुछ. हाँ जी, हाँ जी. आपके यहाँ से यहाँ पे ऐसे इतना जब जाओ फेशियल कराने वगैरह, उनको पता ही नहीं है सब चीजों का. I mean, they must be knowing. I guess they know, but they don't really, not as much as in India. जैसे मैं कह रही हूँ ना, I like that treatment जो आप कर रहे हो ना, brightness वाला glycathon. That's the one I'm interested in. हाँ जी, glutathione peel we have. Even the celebrity peel, Bollywood peel और party peel, इन सब के भी बहुत brightness आती है. आज आप करा के जाओगे तो स्किन क्लीन लगेगी. नेक्स्ट जस्ट 24 आवर्स बाद आप यू बीम लाइक एनीथिंग. और सिर्फ बहुत छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि एवरी 3 आवर्स यू आर सपोज टू अप्लाई सनस्क्रीन. फेस वॉश नहीं करना होता सोप से फॉर 12 to 24 आवर्स हम सजेस्ट करते हैं. CTM आप करोगे नॉर्मल बट नॉट विद फेस वॉश. तो उस हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. No, I think so that sounds really good because last time आपने समझाया था तो it sounded very good to me. That one glucathon. आप इस बार एक स्पेशली वेकेशन प्लान करके आ जाओ हमारे पास. मेरा दिल करता है मैं आऊँ, पहले सबसे पहला स्टॉप आपके पास आके करूँ. Be my guest. As a guest, dental भी दिखाऊंगी, सब कुछ करूँ. Dental का भी आपका, how do you manage both the things? I mean, you have a dentist part in the morning or? Yes, नहीं, I have a clinic जिसमें we have I can do 3 patients simultaneously, 1 dental and 2 related to hair and skin. बने हुए chambers अलग अलग हैं. 2 chambers I have, 1 is for skin and hair and 1 is for dental. Oh, okay. तो मतलब आप कैसे करते हो? डिफरेंट डेज को करते हो या एक दिन में वो करते हो? नहीं, अपॉइंटमेंट बेसिस पे रहता है. जब डेंटल की कोई अपॉइंटमेंट रहती है तो कोशिश करते हैं. वैसे भी नॉर्मली इवन कॉन्फिडेंशियलिटी का हमारा क्लॉज होता है डॉक्टर्स का, तो मैं कोशिश करती हूँ 1 पेशेंट एट अ टाइम ही हो, until and unless 2 friends, 2 relatives come together. बाकी होता है कोई तो I have an assistant with me. My husband also comes in the evening. तो शाम को ही ज्यादा थोड़ा रश रहता है. मॉर्निंग में तो everybody comes by appointment only. Right. That's it. You have to, I mean, appointment is the best thing. फिर आपको पता भी होता है, you can schedule your day accordingly कि कौन आ रहा है किस टाइम पे, you know how long it takes. Yes. Different चीजें होती है. Dentist की भी तो there's cleaning and there's all kind of things. You know, Implants करते हैं, फिलिंग करते हैं, RCT है, ब्लीचिंग है, स्पा, डेंटल स्पा है, वाइटनिंग है, सब कुछ करते हैं. रूट कैनाल वो भी तो होएगा. रूट कैनाल, स्माइल डिजाइनिंग. I know, but last time कि स्माइल डिजाइनिंग, दैट इज व्हाई ऑल दीज आजकल मैं देखती हूँ ना ये ड्रामास वगैरह में, तो लेडी सबका फेस एंड टीथ कितने फर्स्ट क्लास शाइन करे होते हैं. अरे आप शाइन के अलावा दे मतलब मेरे पास मतलब पीपल आर सो मच अवेयर ना. मेरे पास एक लास्ट 6 months पहले की बात है. वन गर्ल, वेरी यंग गर्ल ऑफ 21-22, शी केम. शी सेड आई वांट सर्जरी ऑफ माय नोज. मुझे उसका नाक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, बल्कि उसके 2-4 पिंपल्स के बहुत निशान थे. मैंने उसे बोला आप इसको ठीक कराओ, तो एंड आई डोंट डू सर्जरीज. तो उसने बोला नहीं आप मुझे रेफर कर दो, पर मुझे नोज ठीक करवाना है, मेरे को नहीं नोज शार्प चाहिए. तो देन आई टोल्ड कि ये जो सर्जरीज आप सोचते हो ना, ये फिल्म स्टार्स वगैरह करा लेते हैं. उनके पास तो बहुत मेंटेनेंस के लिए दे हैव ईच एंड एवरी स्टाफ फॉर डिफरेंट कोर्स.
मैंने बोला कि कितने दिन तक तो ब्लीडिंग नहीं रुकती नोज को जब आप सर्जरी करवाते हो। दैट्स अ वेरी डेलिकेट आपको एरिया, वेरी डेलिकेट, हाँ, और आप वेरी डेलिकेट क्योंकि है। जब इसको वो करते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी से और उसको करेक्टिव सर्जरी करते हैं तो आप कितने दिन तो खाना भी नहीं खा सकते। यू जस्ट हैव टू बी ऑन लिक्विड डाइट Oh कि my आप God. खाओगे तो दिस विल मूव और ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन सब लोगों को लगता है इट इज, वो कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल, इट इज वेरी इजी। ऐसा नहीं है, इट इज टफ। जो Very- कराते हैं सर्जरीज इट इज वेरी टफ। nose की तो I don't know why people do it unless they have a very odd shape of कहीं या तो बहुत broad है या कुछ बात है, but a lot of the time they want to copy, look like some movie star, तभी करते हैं वो young जो है ना, they want to look like somebody कि ये movie star है, मैं उसकी शक्ल मेरी ऐसे होए, या I want to have a nose like this one. That's what they do, copy some other शैली धवन जी ने एक मैसेज डाला है कि योर स्किन गेट्स सेंसिटिव आफ्टर पील। यस मैम, बट इफ वी गिव पोस्ट हाइड्रेशन हम उनको अच्छा से देते हैं एंड वी गिव देम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ना, तो इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप बिना प्री पील लगाए पील लगाएंगे तो स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, बाउंड टू सेंसिटिव, हल्का सा ब्रेड तो होती है ना, वो दिखता नहीं है स्किन। तो हम लोग उनको लॉट्स ऑफ मेडिसिन या लोशंस डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किन हम लोग उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ना हो। और सबको हम लोग एक बेसिक जैसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे पास एक छोटा सा ना इन्फॉर्मेशन का मेरे क्लिनिक का ही लीफलेट बना हुआ है जो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस है कि अप्लाइज एसपीएफ, डोंट फिडल विद योर स्किन मच, और आप थोड़ा अवॉइड करें स्वेटिंग के लिए। तो वो सब छोटा मोटा इंस्ट्रक्शंस हम दे के ही चलते हैं। आपके वहां पे तो मेरे ख्याल लगता है स्वेटिंग का कोई इतना इशू नहीं है until and unless you go to gym. Yeah, that is true. यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट है। या रमा जी लिख रही है कि प्रीति जिंटा ने भी अपना फेस रूइन कर लिया है। आई थिंक नॉट ओनली प्रीति, लॉट ऑफ पीपल, दैट गर्ल शर्मा, कैटरीना कैफ को देख लो, उन्होंने भी लिप्स की जॉब कराई थी। she looks horrible, she looks horrible, कैटरीना। एंड एक और है जो आयशा टाकिया। हाँ वो तो खैर उसकी शक्ल नहीं, ये जो शर्मा है, क्या नाम है, शी इज मैरिड टू द क्रिकेटर कोहली, अनुष्का शर्मा। अनुष्का, हाँ शी लुक, पहले ज्यादा अच्छी लगती थी। पर मुझे ऐसा, हमें ऐसा लगता है, पर पता है एक्चुअली क्या होता है, हर किसी की प्रायोरिटीज एंड लाइक्स अलग होती हैं। पहले उसका फेस ज्यादा नेचुरल अच्छा लगता था, आई थिंक। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, ऑल द थ्री, बट मुझे लगता है अनुष्का फिर भी बेटर लगती है अमंग द अदर टू। बट ठीक है, इट इज देयर चॉइस, देयर लाइफ, हम क्या कह सकते हैं। बट सर्जरीज में फिर भी, मतलब बीइंग एन एस्थेशियन आल्सो आई वुड से सर्जरी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। इट शुड बी ओनली कोई डिफॉर्मिटी ठीक करने के लिए। बट ठीक है, पर अब सब करा रहे हैं तो इट्स ओके। नहीं, पर ये जो सब चीजें ट्रीटमेंट है, ये फेस की, ये चेंज करना, ये सब चीजें जो आप बात कर रहे हैं, चेंज बिल्कुल फेस, इवन माधुरी इतना उसका चौड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है फेस, लुक्स लाइक चाइनीज टाइप फेस जो है ना उसका, इतना ब्रॉड। देखो आप कॉलेज बड़ा बड़ा नहीं विद, हाँ एक्चुअली अब क्या है ना, विद एज मेनी थिंग्स इट कम्स ऑन योर फेस ऑल्सो। अभी आज मैं चाहे मैं वेट मेंटेन करके ही रखूं, चाहे मेरा जो आज से 20 साल पहले था, बट स्टिल एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट शोज इन योर स्पेक्टिकल्स, योर बॉडी शुगर, योर वेट, ये सब चीजों में वो नंबर शो होता है। तो आप वो आपको मेंटेनेंस के लिए वो कभी कभी लगता है कि फेस बहुत हैवी हो गया। अब ऑब्वियसली माधुरी इज नॉट 21-22 years गर्ल ना, शी इज अ मैच्योर वुमन ऑफ 58-60 years। 58 तो होगी उसकी एज, कम से कम 55-58 तो होगी। इतनी तो होगी नहीं, काफी देर की मूवीज में आ रही थी। नहीं, मेरा मतलब ये है 55 above होगी, शी मस्ट बी 55 प्लस। आई थिंक सो, यस, बिकॉज़ उसके बच्चे। पर मुझे 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 अच्छी लगती है माधुरी दीक्षित, अच्छी लगती है ऐश्वर्या भी अच्छी लगती है, पर इन सब ने कुछ कुछ कराया विद एज, वो शायद हम लोग सेम चाह रहे हैं। मेरे को बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात ये है कि देखो जी, आई फील कि जिसकी थोड़ी एज हो गई है या कुछ मेंटेनेंस के लिए ठीक है, बट डोंट चेंज योर फेस दैट पीपल कांट रिकॉग्नाइज यू। अब ये जो है 2-3 एक्ट्रेसेस हैं, उनकी शक्ल ही पहचानी, मैंने कहा ये वो है, आई कांट बिलीव इट। एक तो बड़ी बातें करती है, एक तो किसने, शैली जी ने क्वेश्चन भी किया है, कास्ट, रमा जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आल्सो डोंट वांट हीरोइन जिसकी शक्ल ठीक ना होए, वो तो बिल्कुल ठीक बात। डू दे, आप बोटॉक्स भी करते हो? Yes, we do fillers, PDRN, under fillers, under eyes,
माइक्रो फिलर्स भी करते हैं, बेबी बोटॉक्स भी करते हैं, सब करते हैं। अच्छा, बोटॉक्स, आई विश यू आर क्लोज। तो मैं तो एक हफ्ते में तो एक बार आ ही जाती। तो आप साल यू प्लान अ ट्रिप वंस अ ईयर ना। या फिलर्स है दिल पर, फिलर्स में देखो जो आप वहां पे कॉस्ट दे रहे हो ना अपने सारी ट्रीटमेंट की, आपका आने जाने का खर्चा भी निकल जाएगा यहाँ आके आप ट्रीटमेंट कराओगे तो। राइट। मैंने देखा कई लोग जो है ना, मैंने देखा है, मैंने इम्प्लांट कराया था ओवर हियर recently. I must have spent close to 10,000 because ये भी depending on the area and कितना साइज है जो भी है, 10,000 तो आराम से लग गए। अब उसकी मेंटेनेंस भी 3-4 महीने बाद या they have to go back again and whatever it is। और मेरी फ्रेंड आप कहती मेरा भी, उसने भी उसी टाइम पे she was doing, कहती नहीं I have to do the implant and all, पर वो कहती मैं इंडिया जा रही हूँ कराने, I'm not doing it over here। तो मैं कहा after 3 months you have to go again, 3-4 months, कहती I don't mind going, सारा कुछ करके even then it'll be half the price, right. half the price of what's over here, Yes, she is right. That's what she was saying। तो मैं कभी बात ये है कि मेरे लिए फिर एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी इज द बेस्ट, कमलेश जी लिख रही है, लेकिन आजकल कमलेश जी नेचुरल ब्यूटी के नेचुरल ब्यूटी तो बेस्ट है, लेकिन मेंटेनेंस तो हर चीज मांगती है। अब हम कपड़े एक बार शोरूम से खरीद ले, ऐसा थोड़ी उसको कभी वॉश ही नहीं करेंगे, बिना वॉश की थोड़ी उसको डालते रहेंगे। आयुर्वेद, अच्छा यहाँ पे होता है एक यहाँ पे क्लिनिक सा है, आई थिंक रमा जी, और आई थिंक सम पीपल, रमा जी टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग। तो वहाँ पे आयुर्वेदिक फेशियल्स भी होते हैं, कोई समथिंग डिफरेंट? और जी मेरे पास ऐसे है, हम लोग हाइड्रा फेशियल भी टोटली ऑर्गेनिक करते हैं। हाइड्रा फेशियल्स पील्स भी है मेरे पास ऑर्गेनिक बिल्कुल। तो उनकी प्राइस ज्यादा होगी ना ऑब्वियसली। हाँ, उनकी कॉस्ट जैसे नॉर्मल अगर हम हाइड्रा फेशियल एंड पील का कॉम्बो लेते हैं तो इट इज अराउंड 4,000 to 5,000 डिपेंडिंग, अगर आप प्रॉपर अपने स्किन के हिसाब से ले रहे हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक में जा रहे हैं तो इट हैज टू बी 9,000 10,000 रहता है। ऑलमोस्ट डबल हो गया ना, डबल हो गया। यस, ऑलमोस्ट डबल। या तो आई थिंक दैट्स, कुछ और भी पूछा था शैली जी ने? ओके, आपने बोटास का क्वेश्चन पूछ लिया। इवन दैट्स ट्रू, मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये है ना कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक टू डू, द सम पीपल ओवरबोर्ड हो जाते हैं। अगर से मूवी स्टार्स लाइक कैटरीना फॉर एग्जांपल पहले ज्यादा अच्छी लगती थी, आई डोंट थिंक दैट शी लुक्स लाइक गुड एनीमोर। अब विकी कौशल को तो ऐसे ही अच्छी लग रही होगी ना, उसके हस्बैंड को मूवीज में भी आ ही रही है, तो मे बी शायद हम लोगों को लग रहा है उन लोगों को बेटर लग रही हो। बट आई थिंक विकी कौशल जो है, ही लुक्स गुड नाउ बट मच बेटर देन बिफोर। यस, वो कैटरीना कैफ के साथ रह रहा कि वो भी थोड़ा गोरा हो गया ना। उसको सब टिप्स मिल गए हैं, उसको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, तो उसको ज्यादा अच्छा कर दिया है। वो आप ऐसे हो गया, she looks much older than age, I don't know how old, I think she's 40 plus, but she looks quite old now। I don't know, बच्चा हुआ उसका हुआ है कि did they have a baby? नहीं, अभी तो no news as such। I thought I heard some rumors कि she had a baby and all that। Anyway, the Shanaz products आप करते हैं कभी? शनाज करते हैं बड़े अच्छे शनाज प्रोडक्ट्स, काफी देर की मैं सुन रही हूँ, they are very good। शनाज मैम उनके प्रोडक्ट्स हमेशा ही अच्छे रहे हैं। अच्छा, बट अब क्या होता है ना, पैक्स एंड ऑल से आप उसको मेंटेनेंस कर सकते हो। अब आपको रिंकल्स आ गए, आप सब अब आप सीटीएम और सब केयर कर रहे हो, तो वो रिंकल्स आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन उन प्रोडक्ट से वो जाएंगे नहीं, जाएंगे वो एस्थेटिशियन के पास जाके। ओके। तो ऐसे जैसे रेगुलर पीपल लाइक मी और मे बी अदर पीपल, तो हमको थोड़ा सा बताओ। I mean, we're not 15 years old or 20 years old, let's say 50s 60s में जो भी हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या रूटीन टू मेंटेन और टू लुक गुड क्या करना चाहिए? I have always emphasized you look what you eat। Oh, okay, so eating is very देखो important। वैसे तो I am Salman Khan's fan, but I have always loved this line about Aamir Khan's। He has once said, "You look what you eat"। You're right। तो आप जो भी खाते हैं उसका आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी सब तरीके से आपको बेसिकली, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं, हम जैसे अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं, हम उनको भी पील्स के साथ करते हैं, उनके लिए अलग पील्स आती हैं स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर लिप्स एंड आईज। वी हैव डिफरेंट पील्स, लेकिन आई ऑलवेज टेल देम कि यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, कि आप मेरे पास से 4 to 6 सेशंस लो और उसके बाद वापस ना आओ। बट
ये तो है। इतना स्क्रीन एक्सपोजर है, इतना पोल्यूशन है, कोई रात को सबकी, और पहले हम सबके एक ही काम होता था, मॉर्निंग में उठे, गो टू जॉब, कम बैक एंड स्लीप बाय 9-9:30। अभी मुझे खुद को ही 12-1 बज जाते हैं, और जिनकी नाइट शिफ्ट्स हैं उनका सब कुछ अलग है। तो लाइफस्टाइल हैज टेकन अ लॉट बिगेस्ट टोल ऑन एवरीवन्स हेल्थ एंड स्किन टेक्सचर और बाल, ये सब कुछ। दैट इज ट्रू। टू मेंटेन मतलब प्रॉपर, अगर आपको अपने हम चाहिए कि एक बार हमने ट्रीटमेंट, बेसिकली हम सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट्स लें। पील्स आर नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स। जो हम इन्वेजिव पील्स हैं वो तो हम नॉर्मल क्लिनिक्स में हो ही नहीं सकती, वो हॉस्पिटल एडमिट होके ही होती हैं। पर वो वैसी पील्स वाली सिचुएशन बहुत कम ही लोगों के साथ होती है। जैसे अब स्कार रिमूवल है तो हम लेजर और पील्स का कॉम्बो ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे स्कार्स चले जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या करना चाहिए। बट हाँ, पील्स आर एज सेफ एज D10 अगर आप उनको प्रॉपर सुपरविजन में कराएं तो। अदरवाइज ठीक है, दे आर गुड। D10 से फाइन लाइंस वगैरह नहीं जाती इनसे, क्योंकि हम फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन को एक ब्रेड कर रहे हैं, एपिडर्मिस को बहुत हल्का से ब्रेड कर रहे हैं, तो वो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स भी चले जाते हैं, मार्क्स छोटे मोटे, ये सब भी दे ऑल फेड अवे विद टाइम एंड ट्रीटमेंट। पर आपको लाइफस्टाइल जरूर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये शैली जी पूछ रही है कि नेचुरली कैसे अंडर आई पफिनेस के लिए कोई नेचुरल तरीका हो, या घर से में कुछ कर सकते हैं, या देखो, आप टी बैग्स रख सकते हैं, ग्रीन टी बैग्स रख सकते हैं, उनको थोड़ा ठंडा करके आइस क्यूब्स बना सकते हैं ग्रीन टी की। अभी मेरी खुद की आइस बहुत पफी हुई है बिकॉज माय सन इज गोइंग एग्जाम। मुझे 4-5 घंटे की सिर्फ नींद मिल पा रही है, वेरी बिजी विद वर्क एंड सन्स एग्जाम्स। ये अपने आप आपको सबसे पहले तो अपनी कीर्ति जी जो है, आपके बेटे क्या हो रहा है आप, लेकिन आप भी, आपका भी एग्जाम हो रहा है। अरे मेरा भी एग्जाम है, ये अभी छोटा है ना, तो उसके साथ टाइम लगाना पड़ता है। वो तो है। लॉट ऑफ, आई मीन इंडिया में, लाइक आई सेड, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है ना। Yes, हाँ। I think it's more stress a lot, and they give a lot of homework. Yes, stressed a lot। और दूसरा पता है क्या वीना जी, अभी क्या ना, हमारे यहाँ पे ना वेडिंग सीजन है नवरात्रों से। तो जिनका अब जैसे मेरे पास 3 ब्राइड्स का प्री ब्राइडल पैकेज चल रहा है, तो दे स्टार्ट बाय 6 months बिफोर। स्टार्टिंग में तो वो अपने टाइम से आती हैं कि सिर्फ लेजर्स हो रहा है, फुल बॉडी लेजर है या कुछ है। लेकिन जब अब जिनकी शादी है, अब मुझे उनको फेशियल्स देने हैं, उनको और बहुत सारे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कॉस्मेटोलॉजी के काम तभी आपको अच्छे होते हैं अगर आप ऑन टाइम करो। प्रोडक्ट्स की मतलब ब्रांड वैल्यू, मतलब क्या उनकी ओरिजिनलिटी है, एंड प्लस द टाइमिंग्स। उसके बाद एस्थेटिशियन का स्किल आता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाएं। एक्सोसोम्स की ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। तो ये सब चीजें, तो इस वक्त आई एम ओवरलोडेड विद वर्क। तो बेटे को भी इग्नोर नहीं कर सकते, अब उसके एग्जाम्स हैं। तो इस बार सारे फेस्टिवल जल्दी आ गए। नॉर्मली उसके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फेस्टिवल्स आते हैं, तो इतना नहीं रहता। तो पफिनेस, सबसे पहले तो नींद पूरी करो। और सबसे ज्यादा आई वुड नॉट से कि आप आइस क्यूब ऐसे डायरेक्टली रखो, पर आप टी बैग्स होते हैं ना, ग्रीन टी बैग्स यूज्ड वाले भी, अगर चीनी या शहद नहीं डाला तो उसको फ्रिज में रख दो थोड़ी देर के लिए, और उन्हीं को रखो। या उसका थोड़ा सा ग्रीन टी का कॉन्सेंट्रेट बना के आप उसको फ्रिज में रखें, थोड़ा ठंडा करें। आइस आई ऑलवेज अवॉइड कि अगर आप रखो तो, क्योंकि आइस से ना कई बार थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। अब हम लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे पता उसको कितनी देर करना है पेशेंट को। नहीं, अगर आप लेट्स से टी बैग यूज कर रहे हो, यूज्ड वाला, फ्रिज में रख दो तो ठंडा हो जाएगा। तो उसी को तो आप उसको सिर्फ नीचे रखना है कि पूरे आइस के ऊपर रखना है? आइस बंद करके ऐसे पूरे रखना है, एक इधर एक इधर। कुकम्बर होता है ना, कुकम्बर को आप ग्रेट कर लो। पोटैटो को आप थोड़ा ग्रेट करके थोड़ा उसको रखो, तो उसमें अंदर एंटी ब्लीचिंग भी है। पोटैटो D10 उसमें नेचुरल क्वालिटीज है। अच्छा, पोटैटो। अब जिसको टोमेटो सूट करता है, टोमेटो इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्किन। लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि टोमेटो में हल्का सा एसिडिक टिंच आता है, तो बहुत सारे लोगों को टोमेटो सूट नहीं करता। कुकम्बर, पोटैटो मोस्टली सेफ है। आप उनका ग्रेट करके लगा सकते हैं, स्लाइसिस करके लगा सकते हैं।
फ्रीजर में रख के भी आप उनको लगा सकते हैं, तो ज्यादा बर्फ नहीं जमती उनमें, वो ये भी दोनों बहुत अच्छे इफेक्ट काम करते हैं। क्या ये आजकल आजकल तो वो नायका पे वो अंडर आई वो पैड्स भी आते हैं जो ऐसे स्टिक ऑन्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, यस आई सीन दैट। तो जेल पैक्स आते हैं। पोटैटो को वैसे थोड़े से इतने पीस काट के पुट इन द फ्रीजर एंड देन उसको डाल दो पोटैटो को। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो ये क्वेश्चन था, एक मेरा, आई मीन दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, आई मीन आई डोंट हैव टू मच बट आई डू हैव अंडर आई डार्क, थोड़ा डार्क हो जाता है। इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप? आई एम नॉट स्लीपिंग दैट मच आल्सो, नींद नहीं ठीक आती कभी, तो उसका क्या होता है कि कैसे होते हैं, व्हाई इज दैट अंडर आई का जो थोड़ा होता है ना डार्क? देखो, एक तो हम लोग सबसे ज्यादा ना, आई ऑलवेज सजेस्ट बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट कि आप काजल कम से कम यूज करो। अच्छा, गाइस कोई भी आप जितना, क्योंकि अभी नेचुरली काजल भी आप लोगे ना, तो वो थिंग्स आर नॉट दैट ऑर्गेनिक दैट दे यूज्ड टू बी इन आवर ग्रैंड मॉम्स टाइम। ओके। और हमारा जो विजुअल लाइन होता है ना, देखो नीचे का, यहाँ से जब हम काजल अंडर आई लगाते हैं ना, इट ऑलवेज गेट एब्सॉर्ब्ड इन आवर स्किन। ओह, तो आई ऑलवेज सजेस्ट जिनको भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले अपने काजल लगाने का टाइम या आईलाइनर जो नीचे वाली लैश पे लगाते हैं उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। ओके। और बाकी तो देखो, लैक ऑफ स्लीप है या कुछ भी है, खाने को आप थोड़ा सा डाइट मेंटेन करो, विटामिन ई या ए खाओ, दोनों ही अच्छे हैं। E and A? यस, ई एंड ए बोथ आर वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन। एक तो मैं लेती हूँ टैबलेट, मेरा लेती हूँ, इज कॉल्ड हेयर एंड स्किन के लिए है, वो भी लेती हूँ मैं। लेकिन अच्छा, ई के लिए खाना, व्हाट इज अ गुड थिंग टू ईट, ये भी बता सकते हो आप? फिश खा सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले, एग ले, प्रोटीन्स होते हैं ना, हेयर आर टोटली मेड अप ऑफ प्रोटीन, डेड सेल्स होते हैं हेयर एंड नेल्स हमारे बॉडी के। तो अगर हम अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तभी ही हमारे हेयर अच्छे होंगे, अगर हम जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं। एग्स तो मैं रोज खाती हूँ, एवरी डे। यस। और वैसे अगर आपको लेना है तो नॉन वेजिटेरियन के लिए वो ब्रोकली लें, वेजिटेरियन के लिए वो ब्रोकली लें, फॉक्स नट्स लें, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं आपके खान। आजकल तो बायोटिन के जेलीज और कैप्सूल्स भी आते हैं, वेजिटेरियन एंड एग बेस्ड दोनों ही आते हैं, आप वो खा सकते हो। आप यू आर वेरी मच इनटू फॉक्स, क्या मखाने जो होते हैं, यू से दैट इज दे वेरी आर एक्चुअली दे आर सुपर फूड्स सुपर फूड। बेसिकली। अभी देखो, हम लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन जैसे अब हमारे यहाँ नवरात्रे आने वाले हैं, ठीक है, तो आपका टॉपिक तो वैसे ये है, बट आई वुड एम्फसाइज कि हिंदू रिलीजन इज टोटली बेस्ड ऑन साइंस। दैट्स ट्रू, आप देखो, आई एग्री। साल में 2 बार इंडिया में हम लोग फास्ट रखते हैं। इट इज ऑलवेज द टाइम व्हेन बॉडी नीड्स मोर न्यूट्रिशंस, वेदर चेंज हो रहा होता है और हमारी बॉडी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत होती है। तो हम जब फास्ट रखते हैं ना, तो हम अपने स्टमक को रेस्ट देते हैं। नासा ने भी ये माना है कि एकादशी का फास्ट रख के यू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। इट इज गुड फॉर यू, वंस अ वीक वैसे रखना चाहिए थोड़ा सबको। हाँ, वंस अ वीक हमेशा फास्ट रखना चाहिए टू रेस्ट योर स्टमक। नवरात्रि जब हम रखते हैं ना, उसका जो जितना भी ये संघाड़े का आटा, कुच्चू का आटा, आप सर्च कर लेना गूगल पे, दे आर द मोस्ट सुपर फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मतलब इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ना, एक तो फाइबरस होता है, रिच इन आयरन एंड जिंक होता है, और फीमेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ कैल्शियम एंड आयरन ओनली, क्योंकि जब भी फीमेल दे इम्बाइब अ चाइल्ड इन देम, तो जो उनकी बोन्स से कैल्शियम होता है ना, वो उसी से ही एब्जॉर्ब करके बेबी की बोन्स बनती है। तो फॉक्स नट्स एंड जीरा वाटर आई रिकमेंड, ऑलमोस्ट एवरीवन शुड हैव इट। फीमेल्स के लिए तो दे आर बून, उनको जरूर खाना चाहिए। और बीइंग अ वेजिटेरियन, आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं एग भी नहीं खाती हूँ, नॉन वेज भी नहीं खाती, तो सब्स्टिट्यूट। और अगर आपको सबसे अच्छी दाल जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट है, तो दैट इज अरहर की दाल, जिससे हम सांबर बनाते हैं। अच्छा, इट इज द मोर, उसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है among all the pulses. ओके, दैट्स गुड टू नो, या दैट्स वेरी गुड टू नो। तो हमारे पास अभी अच्छा, ये हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है।
कि शैली जी पूछ रही है, बिकॉज मैं भी बड़ा यूज करती हूँ. आई यूज काजल तो नहीं मैं करती, लेकिन आई यूज देखो जब आप घर पे हैं, व्हेन यू आर नॉट ऑफ योर, उन्होंने पूछा व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ काजल. देखो काजल को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता. कई बार इतनी जल्दी होती है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, टाइम नहीं है, एक सिंपली काजल लगा गई. अभी आज मैंने वैसे आपके प्रोग्राम से जस्ट पहले ही लगाया, मॉर्निंग से इट वाज नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं था आंख में. बट अब आपका मुझे क्योंकि लग रहा था फेस आईज बहुत स्वोलन है, पफी है, वेरी टायर्ड, मॉर्निंग 6 o'clock से उठी हुई थी, तो मुझे लग रहा था इट्स नाइट इन इंडिया राइट नाउ. तो थोड़ा मुझे लगा कि मैं लगा लूं. जब आप व्हेन यू आर मूविंग आउट तो लगाओ, और आते ही सबसे पहले इसको क्लीन करो. अंडर आई मैंने बहुत सारे लोगों को देखो, कहते हैं हमारे काजल लगा ही रहता है, जितना इतना डार्क काजल लगाते हैं वो दिन और रात उनके लगा ही रहता है, कभी भी उसको प्रॉपर्ली क्लींस नहीं करते विजरा को. नहीं, अगर but है बाहर इसके बदले यहाँ पे मैं तो काजल नहीं पड़ा, यूज आईलाइनर्स, eyeliner. मैं तो कलरफुल आईलाइनर्स यूज करती हूँ बहुत बार. मेरे पास भी है. I like green color. I like to use blue, brown. मेरे पास ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, सिल्वर, हाँ, पिंक, gold वाला है मेरे पास. हाँ, फिरोजी. लेकिन मैक के सारी पेंसिल्स आई यूज अ लॉट ऑफ मैक स्टफ. सो इंडिया में एक इसकी क्या नाम है उसके कंपनी का, मैं बताती हूँ. बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो गए हैं स्विस ब्यूटी के. उसके पास इतनी वाइड वैरायटी ऑफ आईलाइनर्स है ना, आप नीचे काजल नहीं भी लगाओगे ना, इतने कलरफुल आईलाइनर्स है ना, गुड क्वालिटी, स्मज भी नहीं होते. 350 या 450 ऐसी अलग अलग रेंजेस आती हैं उसकी पर पीस, बहुत अच्छे हैं. ऑल कलर्स, आई हैव कॉपर ऑल्सो. गोल्डन तो मेरे फेस पे इतना दिखता नहीं है. हम भी देखो यहाँ पे काजल तो नहीं है, बट हम पेंसिल ज्यादातर यूज करते हैं ना. ये मैक की पेंसिल मैं यूज करती हूँ ज्यादातर, कभी स्पेशल की भी होती है, डिपेंडिंग. बट आई यूज ग्रीन कलर अ लॉट. आई लाइक ग्रीन अ लॉट. तो उसको फिर आके घर में बाहर से आओ तो हैव ए आईलाइनर रिमूवर आल्सो. पैड होते हैं छोटे छोटे, उसको हाँ जी सारे साफ हो जाते हैं. सो यू शुड देखो क्लीन. अगर आप पैच से रिमूव कर रहे हो ना, तो भी आई ऑलवेज रिकमेंड डबल क्लिनजिंग फॉर आईज. आप जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है ना, उनको वो उससे जितना भी वो करेंगे ना उससे जाएगा नहीं, बिकॉज उनकी स्किन उसको सोख लेती है. ड्राई रहता है ना, ऑयली स्किन से बहुत जल्दी हट जाते हैं. नॉर्मल पैड्स लगाए और दे गो. तो आई ऑलवेज से कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल अपने फेस पे हल्का सा मसाज करके उसको हटाओ, तो जितना भी मेकअप है ना, दीज आर द बेस्ट नेचुरल क्लिनजर्स. कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल. यस, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बादाम रोगन भी ले सकते हो, लेकिन कोकोनट ऑयल इज पॉकेट फ्रेंडली, इट्स बेस्ट. इसमें कोकोनट में अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर आप कोकोनट ऑयल से उसको क्लीन कर रहे हो ना फेस को, या ऑलिव ऑयल से, जितना भी हैवी मेकअप आपने किया है, जो भी होगा ना रेजिड्यू, क्योंकि आप आईज के अंदर कुछ भी अंदर नहीं लगा सकते क्लीन करने के लिए. आप ईयरबड पे हल्का सा उसको ऑयल के अंदर डिप करो और ऐसे क्लींस करो, बिल्कुल चला जाएगा. तो अंडर आई के लिए भी तो अच्छा होता है ना. कोकोनट ऑयल इज गुड फॉर अंडर आई एवरीथिंग. यस, जिनकी स्किन ड्राई है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है उनके लिए. सब कुछ घर में पड़ा हुआ है. देखो ऑलिव ऑयल भी घर में है, कोकोनट ऑयल भी घर में है, ये दूसरा आलमंड ऑयल भी, सब कुछ घर में पड़ा हुआ है. अब यूज कर नहीं किया ना, अब थोड़ा यूज करना शुरू करूंगी मैं भी. आई वांट टू डू द सेम थिंग. इतने एक्सपेंसिव क्लेंजर्स लेकर रखे हुए हैं, व्हाई नॉट यूज समथिंग व्हिच इज मोर नेचुरल एंड बेटर फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन. जैसे आप कह रहे हो कितनी न्यूट्रिशन होती है कोकोनट ऑयल में. कोकोनट आर वेरी गुड. कोकोनट इज गुड टू ईट. कोकोनट एक कंप्लीट सप्लीमेंट है. अगर आप कोकोनट को अलग से देखो, being a dietitian also I'll tell you coconut is a complete nutrition. Water है and it is full of supplements. Oily भी होता है. कोकोनट का पानी भी होता है ना, कोकोनट का. I love that. Hydration मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. It's very good. And is coconut good to eat? I mean coconut, I love coconut. तो उसको जितना मर्जी खाओ. कोकोनट खाने से कोलेस्ट्रॉल लो होता है. It maintain our glycemic index. आपको न्यूट्रिशियस होता है अंदर से, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है. इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट. और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस भी मेंटेन करता है बॉडी का. हाँ, पर ऑल्सो देखो ना, बॉडी में हाइड्रेशन भी तो होनी चाहिए ना, पानी भी पीना चाहिए. हाइड्रेशन, लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज दे डोंट ड्रिंक टू मच वाटर. आई डोंट नो व्हाई, कम पीते हैं. दे शुड 7-8 ग्लास तो पीने चाहिए. डोंट यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? मिनिमम. Minimum, right?
I mean, गर्मी होती है तो people drink. But so I think we got a very good tips. Any specific coconut oil या जो भी है घर में? वर्जिन कोकोनट ऑयल आप सर्च करोगे ना तो आपको यू विल गेट मेनी ब्रांड्स. इंडियन ब्रांड्स भी आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे विच बिलोंग्स टू साउथ. तो क्योंकि कोकोनट साउथ इंडिया में ही ज्यादा होता है तो आप यू विल गेट मेनी. नहीं, और यहाँ पे इंडियन स्टोर बहुत है, उनके पास बहुत वैरायटी होती है. इंडियन स्टोर्स शैली जी ने पूछा है इज कोकोनट ऑयल गुड फॉर अंडर आई. यस मैम, इफ यू हैव अ ड्राई स्किन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको सारे प्रोडक्ट्स जेल बेस ही लेने पड़ेंगे. यू कैन नॉट यूज ऑयल. So, वो फिर कोकोनट मिल्क ले सकते हैं क्लीन करने के लिए. तो फेस क्लीन करने के लिए तो कोकोनट ऑयल लेके तो उसको सारे कॉटन बॉल में लेके उसको मसाज कर लो हल्का सा ना. जैसे आपने एक बार क्लीन कर लिया व्हाट्सएवर पैड या वाइप से अपने आईपैड्स और वाइप किया या फेस आपने वॉश किया अपने फेस वॉश से, उसके बाद अप्लाई और थोड़ा सा मसाज करके आप एक वाइप लेके ऐसे करोगे ना, आप देखना जितना भी रेजिडुअल मेकअप होगा ना वो सारा का सारा आ जाएगा. एंड ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई कंसीलर से पहले आप सिलिकॉन बेस्ड या डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन आप प्राइमर जरूर लगाएं अंडर योर ऑल मेकअप प्रोडक्ट्स. इट एक्ट्स एज अ बैरियर. आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेशन नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट की. आई यूज हाँ सेरम मैं यूज करती हूँ, बट प्राइमर भी मेरे पास है, पर मैं करती हूँ कभी नहीं करती. सो आई शुड बेसिकली स्टार्ट ऑफ आफ्टर क्लीनिंग द फेस यूज अ प्राइमर फर्स्ट, राइट? हाँ, फिर उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करो. कंसीलर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, जेल लगाओ, टिंटेड सनस्क्रीन लगाओ, बट प्राइमर होना चाहिए. इट ऑलवेज एक्ट एज अ बैरियर कि वो प्रोडक्ट्स जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स के केमिकल्स होते हैं ना उसको अंदर लीच आउट नहीं होने देता स्किन में. हाँ, ये बात तो है. दैट इज ट्रू. एंड एक बार फिर उसके बारे में बताना, बिकॉज आई एम रियली व्हाट आई डू इज, आई मीन दिस इज स्टूपिड. मखाने का पैकेट लाती हूँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव हियर. उसको लाके उसको थोड़ा रोस्ट करती है बाय द गर्ल हु कम्स. मैं कहा कहते मैं वीना जी मैं आपके लिए वो कर देती हूँ, रोस्ट कर देती हूँ. मैं कर दे. उसमें डाल देती है, आई एम ईटिंग द होल डे. तो एक पैकेट एक दिन भी नहीं निकल, 2 दिन निकलता है. मैं कहा टू मच ईटिंग. लेकिन हेल्थ इज वेल्थ ना. व्हाट इज टू मच? जितना खाओ उतना अच्छा है. डॉक्टर को जाके पैसे देने से तो अच्छा ही है ना. Of course. तो इसके टॉप बेनिफिट्स क्या है मखाने के? Because I'm going to buy today. देखो, सबसे पहले तो एक ये जैसे ग्लूटाथाइन हम कहते हैं ना मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है. इट इज अ सुपर फूड. इट मेक्स योर बॉडी, मतलब सबसे पहले तो ये बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है. इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट. इट कंट्रोल, मतलब कैल्शियम रिच होता है तो बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. फीमेल्स में जितने भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं ना, पीसीओडी रिलेटेड, पीसीओएस, कुछ भी कंसीवमेंट में प्रॉब्लम, ये सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है. तो ये 4 इसके सबसे बिगेस्ट वो है. आप रुजुता दिवाकर जो करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट है ना, आप कभी उसका पढ़ना इसके ऊपर. मतलब उसने एक बहुत लाइव, व्हेन आई वाज डूइंग माय न्यूट्रिशन ना, जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ रही थी तो आई वाज वेरी एविडेंट. मैं बहुत सुनती थी उनको, तो क्योंकि उन्होंने करीना कपूर में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाई थी ना टू साइज 0, तो शी बिकेम फेमस आफ्टर दैट. तो उन्होंने भी इस बात को बोला है कि इट इज सुपर फूड. तो ये उसको किस तरीके से करना है? ग्राइंड करना है या वैसे ही खा लो? या आप कुछ देखो, आई ऑलवेज से जूसेस एंड शेक्स आर, जिसके पेट में, मुंह में दांत नहीं या जिसके पेट में आंत नहीं, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट कभी भी जूसेस और शेक्स को तब तक रिकमेंड नहीं करता जब तक आपको टीथ में कुछ प्रॉब्लम है, आप खा नहीं पा रहे, या आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है. आप इसको जैसे वो है ऐसे ही रोस्ट कर लो ऑन गैस या माइक्रोवेव, या आपके पास वही अगर एनी फॉर्म आप उसको बिना नमक के भी वो क्रंची हो जाते, बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आपको उनके ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए विद एज तो आप उसको हल्का सा घी रोस्ट कर सकते हैं. व्हाट आई डू इज आई डू इट माइक्रोवेव कर लेती हूँ उसको, 1 मिनट में वो प्रॉपरली हो जाते हैं. बिल्कुल 1 स्पून ऑफ देसी घी डाल के उसी के अंदर थोड़ा सा व्हाटसोएवर हर्ब्स यू वांट, बच्चों के लिए आपको ऑरेगेनो, पेरी पेरी, व्हाटसोएवर यू वांट यू कैन पुट. और मैं सॉल्ट हमेशा सेंधा ही यूज करती हूँ, थोड़ा अवॉइड, हाइपरटेंशन को अवॉइड करता है. उसको उसमें डाला, हल्का सा वो जैसे ही हल्की सी क्रैकलिंग साउंड आई ना जैसे सॉल्ट डालते ही, आप उसमें डाल दो और उसको फटाफट
अगर आप करोगे मखाना को तो बहुत अच्छे डिलीशियस, बच्चे भी खुश होके खाते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो आते जाते खाई जा रही हूँ। व्हेन शी डज इट फॉर मी, कहते मैं आपके लिए बना देती हूँ। मैं क्या बना दे फिर तो मेरे लिए आके पॉपकॉर्न से बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप बच्चों को खिलाओगे तो I हेल्दी। treat it like a popcorn because I love popcorn. No, I don't know how popcorn is good for me or not, but ये ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, बट पॉपकॉर्न भी अगर आप मतलब प्री वो नहीं लेके आते ना, जैसे बहुत ज्यादा हम लोग आजकल लेके आते हैं, जैसे चीजें बनी बनाई लाते हैं, अगर आप वैसे नहीं लेके आते हैं, खुद बनाते हैं, तो इट इज वेरी हेल्दी ऑप्शन अगर आपको शुगर नहीं है तो। अच्छा, शुगर है तो इट्स नॉट गुड। इट हैज अ हाई शुगर कंटेंट। I see. कॉर्न हैज अ हाई शुगर कंटेंट। You're right. You're right. अच्छा, what is सिंधा सॉल्ट? कोई स्पेशल सॉल्ट होता है ये? हाँ जी, ये नॉर्मल सॉल्ट तो समुद्र से बना होता है, ये पहाड़ से आता है सॉल्ट। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सॉल्ट ये पाकिस्तान में होता है। अच्छा, I like हिमालय। मेरे को पिंक सॉल्ट अच्छा लगता है। Is the same thing, pink salt? हाँ, पिंक, सेम थिंग। हाँ, वही मैंने सोचा है। It says over there हिमालयन लिखा होता है, तो मैं तो वो यूज करती हूँ, पिंक वाला। I love that, pink salt. उसमें लिखा हिमालयन, तो मैं आजकल वही यूज करती हूँ, व्हाइट वाला नहीं यूज करती। I like the, इसका टेस्ट भी डिफरेंट है एंड लाइट है थोड़ा, like it's not very strong salty flavor, salty. You don't get that. फॉक्सनट्स की आप खीर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। दोज हु आर मीठा लवर्स लाइक मी। मेरी फ्रेंड यहाँ पे वो है, अपनी देख रही कि नहीं देख रही, गॉन टू द डॉक्टर, कमलेश जी, तो वो उसका खीर बनाती है ड्यूरिंग द नवरात्रि टाइम। कहते मैं नवरात्रि टाइम, मैं वही कहने लगी थी, थर्ड या फोर्थ नवरात्रे वाले दिन माता को इसी का भोग लगता है, एक्चुअली फूल में खाने की खीर का ही भोग लगता है। वही कहते तो माय मदर आल्सो मेक, she also makes. I'll tell her the recipe. I'll tell her send me the recipe. I'll try. I will send you the recipe. Next class ना मेरी आयुर्वेदा based food and ingredients and cooking classes भी रख लेना। Because हमको you know, स्किन के लिए, फेस के लिए, सब लेडीज को ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सो नेक्स्ट सेशन हमारा यही होगा। आप देखो पता भी नहीं चला, 1 घंटा भी निकल गया, बट यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली अबाउट द peels. I wish I was close by, and नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओ तो 1 वीक मेरे लिए लेके आना। हाँ, ये हाँ जरूर, मैं डेफिनेटली। तो ये कहते हैं कि पिंक सॉल्ट में आयोडीन नहीं होती? नो, देयर इज नो आयोडीन, सो देयर इज नो आयोडीन। iodine in that one, so I don't know. आयोडाइन सॉल्ट बेसिकली वो क्या कहते हैं ना, एडिशन होता है समुद्री नमक में, उसको हम लोग फोर्टिफिकेशन करते हैं उसकी। फोर्टिफिकेशन इज द राइट वर्ड। वी यूज इंड्यूस आयोडीन इन ऑन सॉल्ट। लेकिन अगर जिसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हमारे को इंडियन डाइट्स में तो सब इतने अचार मसाले खाते हैं, उनको आयोडीन की जरूरत नहीं है आयोडाइज सॉल्ट के लिए। I know, but जिसको हाइपरटेंशन है, अचार मसाले जो खाते हैं ना, उनको आयोडीन किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप कोई हेल्थ कॉन्शियस चीज ले रहे हो ना, तो उसमें सी सॉल्ट आप अवॉइड करो, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली आप नॉर्मल सॉल्ट खा रहे हो ना, वो सब आयोडाइज्ड ही है। अच्छा, किसके लिए? में हम सेंधा नमक ही खाते हैं। व्हाई वी शुड ईट सेंधा नमक ओनली? बिकॉज वो हमारी हेल्थ, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। सिंधा वाला के ना, ये पिंक सॉल्ट। अच्छा, रमा जी कह रहे हैं सिंधा सॉल्ट शी यूजेस ड्यूरिंग द व्रत के टाइम यूज करती है। यस, हाँ जी, वी यूज ड्यूरिंग व्रत। अभी नवरात्रे आ रहे हैं ना, सब उसी में खाएंगे। ठीक बात है। रमा जी लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग सेशन की थी। थैंक यू सो मच रमा जी, आप लोगों को सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए इसका नाम दिल दिया गल्ला है ना। यू कैन बी अनफिल्टर्ड। Thank you so much. I really enjoyed, and everybody, thank you so much for coming and asking all these questions. Next time, everybody has to share in your timeline. जितना शेयर करोगे, आपके जो सारे फ्रेंड होंगे आपके सेशन में, आपके जो गेस्ट हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फेसबुक में सारे ज्वाइन कर सकते हैं। When they have the time or they are there, they can join. और इंडिया में भी शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आपको भी मैं समझाऊंगी कैसे करना है, आप भी करेंगे, and we'll do the other thing also. So we're going to talk about this, all these things that you just talked about, because सबको स्किन का, it's my pleasure to be with you. Thank you so much, and everybody, thank you, all of you who joined. Have a wonderful day, and we are also live on YouTube right now, and live in Facebook, same time. So this is a new thing that I started. I hope you notice that. Okay, this is a different company, not Zoom anymore. So going onwards, I'll be using this more. So thank you, everyone.
This Friday I'm going to be off, so we'll see you next Wednesday. Thank you so much. Okay, bye bye everyone. Have a nice day, and thank you. Kirti. Bye. Thanks. Thank you. एक मिनट ठहर जाओ, आपके साथ मैं करती हूँ. Thank you. Yes, I forgot to say that. Happy birthday to my friend Nupur. Today is her birthday. Enjoy the day if you're listening or not listening. And Ramaji's and everybody's coming. Ramaji's birthday is coming this weekend. So once again, this Saturday, and Kamleshji's birthday the same day. So I want to wish them both a very happy birthday this coming Saturday, the 20th. So have a blessed day. Nupur, wherever you are, enjoy the day. Thank you so much, everyone. And enjoy the day, all of you. Bye. Bye, everyone. See you next session. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Okay.